sexual reproduction in flowering plants. फूलों वाले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, यानी प्रजनन कैसे होता है। फूलों में या फूलों वाले पौधों में लैंगिक जनन या प्रजनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन ensure continuity of species generation after generation as the older individual undergo senescence and die. प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता और सुनिश्चित करता है, क्योंकि पुराने व्यक्ति जीर्णता से गुजरते हैं और मर जाते हैं। उसके तत्पश्चात फ्लावरिंग प्लांट्स shows sexual mode of reproduction and bears complex reproductive units as male and female reproductive units along with accessory structures. फूलों वाले पौधे यौन प्रजनन का तरीका दिखाते हैं और नर और मादा प्रजनन इकाइयों के साथ साथ सहायक संरचनाओं के रूप में जटिल प्रजनन इकाइयां धारण कर लेते हैं। Flower is a modified stem which functions as a reproductive organ and produces ova and or four whorls या और pollen. A typically agiospermic flower consists of four whorls of floral appendages attached on the receptacle. फूल एक संशोधित तना है जो प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है और अंडाणु यानी ओवा एंड या पराग पैदा करता है। एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक फूल में पुष्प उपांगों के 4 चक्र होते हैं, जिसमें से कैलेक्स, कोरेला, एंड्रोसियम मेल reproductive organ consisting of stamens and gynoecium composed of ovary, style and stigma. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोकियम पुंकेसर से युक्त नर प्रजनन अंग और गाइनोकियम अंडाशय, वर्तिका और कलंक से बना होता है। प्री फर्टिलाइजेशन structure and events. Several structural and hormonal changes lead to formation and development of the floral primordium. Inflorescence is formed that bears floral buds and then flower. पूर्व निषेचन संरचना और घटनाएं, कई संरचनाएं और हार्मोनल परिवर्तन पुष्प प्राइमोर्डियम के निर्माण और विकास की ओर ले जाते हैं। पुष्पक्रम बनता है
जो पुष्पकलियों और फिर फूलों को धारण कर लेता है। फूलों में नर एंड्रोसियम और मादा गाइनोसियम विभेदित होते हैं। In flower, male androecium and female gynoecium differentiate and develops, in which male and female gametes are produced. Stamen, microprogasium, gaium, and pollen grain. Stem consists of long and slender stalk called filament and generally bilobed anthers. पुकेसर में लंबे और पतले डंठल होते हैं जिन्हें फिलामेंट कहा जाता है और आमतौर पर द्विदली परागकोश होते हैं। फूलों में नर एंड्रोसियम और मादा गाइनोसियम विभेदित होते हैं और विकसित होते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। पुकेसर, माइक्रोस्पोरोगेयम और परागकण। Each lobe contains two theca, diatheses. The anther is four-sided structure consisting of four microsporangia, two in each lobes. पुकेसर में लंबे और पतले डंठल होते हैं जिन्हें फिलामेंट कहा जाता है और आमतौर पर द्विदली परागकोश होते हैं। प्रत्येक पाली में दो थेका डाइथियस होते हैं। परागकोश चारों तरफा यानी चार तरफा संरचना है जिसमें चार माइक्रोस्पोरोगिया होते हैं। प्रत्येक पाली में दो दो होते हैं। Sexual reproduction in flowering plants. Reproduction ensures continuity of species generation after generations as the older individuals undergo senescence and die. Flowering plants shows sexual mode of reproduction and bears complex reproductive units as male and female reproductive units along with accessory structures. Flower is a modified stem which functions as a reproductive organ and produces ova and or pollen. A typically agnospermic flower consists of four whorls of floral appendage attached on the receptacle. Claxi, corolla, androecium. Androecium, male reproductive organ consisting of stamens, and gynoecium, composed of ovary, style and stigma. Free fertilization structure and events. Pre-fertilization structure and events. Several structural and hormonal changes leads to formation and development of the floral. Primordium inflorescence is formed that bears floral buds and then flower. In flowers, male androecium and female gynoecium
differentiate and develops, in which male and female gametes are produced. Stamen, microprogygium, and pollen grain. Stamen consist of long and slender stalk called filament and generally bivalve-lobed anthers. Each lobe contains two theca. Dioecious. The anther is four-sided structure consisting of four microsporogia, two in each lobage. फूलों वाले पौधों में लैंगिक प्रजनन। प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, क्योंकि पुराने व्यक्ति जीर्णता से गुजरते हैं और मर जाते हैं। फूल वाले पौधे यौन प्रजनन का तरीका दिखाते हैं और नर और मादा प्रजनन इकाइयों के साथ सहायक संरचनाओं के रूप में जटिल प्रजनन इकाइयां धारण करते हैं। फूल एक संशोधित तना है जो प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है और अंडाणु और या पराग पैदा करता है। एक विशिष्ट एंजियोस्पर्मिक फूल में पुष्प उपांगों के 4 चक्र होते हैं जो रिसेप्टेकल से जुड़े होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोकियम, पुकेसर से युक्त नर प्रजनन अंग और गाइनोकियम अंडाशय, वर्तिका और कलंक से बना होता है। पूर्ण निषेचन संरचना और घटनाएं। कई संरचनाएं या संरचनात्मक और हार्मोनल परिवर्तन पुष्प प्राइमोर्डियम के निर्माण और विकास की ओर ले जाते हैं। पुष्पक्रम बनता है जो पुष्प कलियों और फिर फूल को धारण करता है। फूलों में नर एंड्रोसियम और मादा गाइनोसियम विभेदित होते हैं और विकसित होते हैं, जिसमें नर और मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं। पुकेसर, माइक्रोस्पेरोगियम और परागकण। पुकेसर में लंबे और पतले डंठल होते हैं जिन्हें फिलामेंट कहा जाता है और आमतौर पर द्विदली परागकोश होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 थेका डाइथियस में होते हैं। परागकोश चार तरफा संरचना है जिसमें चारों माइक्रोस्पेरोगिया होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 होते हैं।